નરેશ પટેલના કોંગ્રેસમાં જોડાવાની સંભાવના વધુ મજબૂત થઈ રહી છે, જ્યાં કોંગ્રેસે નરેશ પટેલનો પ્રસ્તાવ સ્વીકાર કર્યો હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે। અહીં પીકેના કોંગ્રેસમાં સામેલ થવાથી નરેશ પટેલના કોંગ્રેસમાં સામેલ થવાની સંભાવના મજબૂત જણાઈ રહી છે। આપણે જણાવીએ કે નરેશ પટેલે સીએમ બનવા માટે કોઈ શરત ન મૂકી હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે। નરેશ પટેલની ઈચ્છા હતી કે પીકે ગુજરાત કોંગ્રેસની કમાન સંભાળે। પીકેને કોંગ્રેસમાં સામેલ કરવા માટે સોનિયા ગાંધીની ટીમે લીલી ઝંડી આપી છે। જોકે પીકે કોંગ્રેસમાં સામેલ થવાની સ્થિતિમાં નરેશ પટેલ પણ કોંગ્રેસમાં સામેલ થવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે। તો આખરે પ્રશાંત કિશોર અને નરેશ પટેલ આ બે નામ આજે દિવસ દરમિયાન સતત ગુંજતા રહ્યા અને ખાસ કરીને નરેશ પટેલ જ્યારે દિલ્હીમાં છે ત્યારે આખરે સમગ્ર મામલાને વધારે તૂલ મળી રહી છે, કારણ કે નરેશ પટેલ કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે સંપર્કમાં છે અને આવતીકાલે પ્રશાંત કિશોર સાથે પણ મળશે અને તેને લઈને આખરે સ્પષ્ટ સંકેત મળી રહ્યા છે અને સૂત્રો જે જણાવી રહ્યા તે પ્રમાણે કોંગ્રેસમાં જોડાવાની સંભાવના વધુ મજબૂત થઈ રહી છે, કારણ કે પ્રશાંત કિશોર તેને લઈને જે આગ્રહ રાખ્યો હતો નરેશ પટેલે, તેને લઈને આખરે તમામ બાબતો ઘણી સુવ્યવસ્થિત રીતે ચાલી રહી છે અને તેને લઈને આ સંકેત મળી રહ્યા છે કે નરેશ પટેલની ઈચ્છા હતી કે પીકે એટલે પ્રશાંત કિશોર આ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકામાં આવે અને કોંગ્રેસમાં સામેલ કરવા માટે સોનિયા ગાંધીની ટીમે જ્યારે લીલી ઝંડી આપી હોવાથી હાલ પ્રબળ શક્યતા જણાઈ રહી છે કે નરેશ પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાઈ શકે છે। આપણે જણાવીએ કે નરેશ પટેલના કોંગ્રેસમાં જોડાવાની સંભાવના વધુ મજબૂત થઈ હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે, પણ હાલ કોંગ્રેસે નરેશ પટેલનો પ્રસ્તાવ સ્વીકાર કર્યો હોવાનું પણ સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે અને તેથી જ નરેશ પટેલના દિલ્હીમાં ધામા પ્રશાંત કિશોરનું આવતીકાલે મળવાની બાબતો અને સાથોસાથ સોનિયા ગાંધીએ પ્રશાંત કિશોરને લઈને જે લીલી ઝંડી આપી, તમામ એવા બાબતોના સંકેતો મળી રહ્યા છે કે જ્યાં સીએમ બનવાની કોઈ ગણતરી કે માંગ નહોતી, પરંતુ આખરે પીકે ગુજરાત કોંગ્રેસની કમાન સંભાળે તે વાતને લઈને તે વાત રજૂ કરી હતી અને સૂત્રો જણાવી રહ્યા તે પ્રમાણે આખરે નરેશ પટેલની આ વાતનો સ્વીકાર કરાયો છે। આ ઉપરાંત પીકે ગુજરાત કોંગ્રેસની કમાન સંભાળે તેને લઈને પણ સ્પષ્ટ રીતે નરેશ પટેલ સાથે ચર્ચાઓ થઈ હોવાની વિગતો મળી રહી છે અને તેને લઈને संवाददाता कुमार विक्रांत अपने साथ जुड़ा है। कुमार, जहाँ तक देखा जाए ये पूरे जो समीकरण मिल रहे हैं उससे ये शक्यता कि हम मान ले कि नरेश पटेल ने जो भी दरखास्त की वो मानी गई और अब ये कांग्रेस में जुड़ सकते हैं। ये देखिए, दो बातें बड़ी अहम है। एक जो एक संदेश जा रहा था लगातार कि नरेश पटेल ये चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए गुजरात का, उसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन करें, तो ये बात उनके लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है। नरेश पटेल ने एक ही शर्त रखी थी कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी गुजरात में लेते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जब आला कमान से बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो गुजरात, हिमाचल या राजस्थान या किसी राज्यों के लिए वो काम नहीं करने वाले हैं। अगर 2024 की जिम्मेदारी उनको मिलती है तो वो 2024 के पहले जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में जब लगातार 10 जनपद में सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की बैठकें हुई हैं और अब जो जिस कमेटी को सोनिया गांधी ने बनाया था उस कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट दे दी है और जिसमें कहा है कि प्रशांत किशोर को एक रणनीतिक तौर पर नहीं बल्कि ज्वाइन कराना चाहिए, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कराना चाहिए, जिससे कहीं ये संदेश न जाए कांग्रेस पार्टी ने आउटसोर्स कर दिया कांग्रेस पार्टी को। इसलिए अगर प्रशांत किशोर जब अब ये तय हो रहा है करीब करीब कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो नरेश पटेल की जो इकलौती शर्त थी कि प्रशांत किशोर को गुजरात में जिम्मेदारी मिले, वो वहां का चुनाव प्रबंधन संभालें, तो जब ये काम हो रहा है, उनकी शर्त नरेश पटेल की मानी जा रही है, तो ये भी आप मान सकते हैं कि अब नरेश पटेल की कांग्रेस में शामिल होने की जो संभावनाएं हैं वो और मजबूत और काफी मजबूत हो गई। बिल्कुल कुमार, जहां तक देखा जाए प्रशांत किशोर के साथ नरेश पटेल की मुलाकात कल होने वाली है, दूसरे कांग्रेस के नेताओं के साथ भी संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। क्या ये पूरे समीकरण ये अंदाजा देने के लिए काफी है कि अब बहुत जल्दी वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे, बस उसकी एक फॉर्मेलिटी बाकी है? जी, जैसा मैंने कहा कि नरेश पटेल की एक ही शर्त थी कि प्रशांत किशोर को गुजरात में चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी मिले और प्रशांत किशोर इस बात पर अड़े थे कि वो सिर्फ गुजरात में काम नहीं करेंगे, 2024 की जिम्मेदारी उनको मिले और उसको केंद्र में रखते हुए वो बाकी राज्यों में जिन राज्यों में चुनाव 2024 के पहले आएंगे वहां पर वो काम करने को तैयार है। इसीलिए इतना लंबा वक्त लगा। पिछले दिनों नरेश पटेल दिल्ली आए थे, कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात की थी और उसके बाद भी यही सवाल था नरेश पटेल का कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की जो बातें मीडिया में चल रही हैं वो गलत है। मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जीते
और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी दी जाए। तो अब जब प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की बातें चल रही हैं और जिस पर कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो ग्रुप बनाया था सोनिया गांधी ने, उन्होंने मुहर लगा दी है। जब प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के करीब आ रहे हैं, उसमें शामिल होने की बात चल रही है, तो जब एक ही शर्त नरेश पटेल की थी कि प्रशांत किशोर साथ आए, जब प्रशांत किशोर साथ आ रहे हैं, नरेश पटेल की शर्त मानी जा रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि नरेश पटेल भी अब कांग्रेस के बहुत करीब आ चुके हैं। घोषणा कब होगी, मुलाकातें कब होंगी, किस तरीके से होंगी, क्या भूमिका बनेगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन पीके और नरेश, ये आप कह सकते हैं गुजरात के लिए कांग्रेस मॉडल करीब आ चुका है। लेकिन एक बात और, नरेश पटेल और कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि नरेश पटेल ने प्रशांत किशोर को लेकर के शर्त रखी थी कि वो आए, कभी ये शर्त नहीं रखी थी कि नरेश पटेल मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गुजरात के, तभी वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल कुमार, जहां तक ये देखा जाए कि अगर आगे वाले दिनों में गुजरात में कांग्रेस का चेहरा नरेश पटेल ही होंगे, अगर ये होता है तो कांग्रेस को कितना फायदा इस हिसाब से मिल सकता है, और इस हिसाब से क्या कांग्रेस की जो राष्ट्रीय टुकड़ी है वो भी क्या ऐसा ही सोच रही है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और नरेश पटेल, इन दोनों के जो करीबी सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि नरेश पटेल ने कभी ये कहा ही नहीं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। वो कांग्रेस में शामिल होने को तैयार थे। उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि प्रशांत किशोर को शामिल किया जाए, उनकी जो राजनीतिक रणनीतिकारिता है उसका फायदा लिया जाए। उसी को लेकर दिक्कत हो रही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर सिर्फ गुजरात में काम करने को तैयार नहीं थे, वो 2024 की बात कर रहे थे। 2024 में काम करने के लिए वो चाहते थे कि 24 में अगर वो काम करे तो उसके करने का उनको अगर मैंडेट मिलता है तो उसके पहले जहां जहां चुनाव होंगे, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, वहां वो काम करने को तैयार है। तो ऐसे में जब नरेश पटेल ने एक ही शर्त रखी थी प्रशांत किशोर को साथ लाने की, और अब जब कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर को साथ ला रही है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि नरेश पटेल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। नरेश पटेल के करीबी कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो कहते हैं ऐसी कोई शर्त नरेश पटेल ने कभी रखी ही नहीं। ये बात की बातें हैं, कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जब कांग्रेस के साथ आ रहे हैं तो अब ये माना जाना चाहिए कि नरेश पटेल ने जो शर्त रखी थी वो कांग्रेस ने मान ली, प्रशांत किशोर साथ आ रहे हैं, तो नरेश पटेल भी कांग्रेस के साथ आने वाले हैं। ऐसी संभावनाएं मजबूती से मजबूत हो रही। बिल्कुल, धन्यवाद कुमार। તમામ મસલે પર નજર બનાવી રखें। તો કુમાર વિક્રાંત જણાવી રહ્યા તે પ્રમાણે એ વાત તો નક્કી છે આખરે પીકેને લઈને, પ્રશાંત કિશોરને લઈને આખરે નરેશ પટેલની જે બાગ હતી તે આખરે આલાકમાન્ડે સ્વીકાર કરી છે। એટલે આગામી દિવસોની અંદર એ પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે કે નરેશ પટેલ ભલે સીએમ પદને લઈને આખરે કોઈ બાંધછોડ ન કરે, પરંતુ તમામ બાબતોને લઈને જે પ્રશાંત કિશોરને જો આગામી દિવસોની અંદર ગુજરાતના કેમ્પેન કમિટીની જવાબદારી સ્વીકારે છે તો આખરે નરેશ પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાવાનું મન બનાવી શકે છે। પણ આ તમામ